بھٹو صاحب کے شہادت کے بعد انہوں نے علم بلند کیا اور پاکستان میں انہوں نے ایک بہت بڑی جستجو کی، اور اس جستجو کے نتیجہ میں آپ نے دیکھا کہ جمہوریت بحال ہوئی اور وہ خود آ کر وزیر اعظم بنی، اور وزارت عظمیٰ کے بعد پھر دوسری مرتبہ پھر وہ وزیر اعظم بنی، اور جب جلا وطن ہوئی تو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے، اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت انہوں نے اپنے جو ایک مشن تھا اس کو لے کر چلی اور پاکستان میں آئیں، اور انہوں نے اپنے بین الاقوامی جو تعلقات تھے ان کو استعمال کیا اور مجبور کیا اس وقت کے صدر جنرل مشرف کو کہ وہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں اور پارٹی بیس پر الیکشن کرائیں، اور وہ پارٹی بیس پر الیکشن ہوئے، اور اس وقت جو لولی لنگڑی جمہوریت آج آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ان کی مرہون منت ہے۔ اور یہاں اس کو مشن کو آگے رکھنے کے لیے جب ان کی شہادت ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ وہ اقتدار میں آ گئی، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ کی شہادت ہوئی اور اس سے قبل بھی اس وقت محترمہ صاحبہ نے ان کو قائل کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کو، جو الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہتے تھے کہ وہ بائیکاٹ نہ کریں، اور جب وہ شہادت ہوئی تو انہوں نے پھر بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ جب گڑی خدا بخش میں میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تعزیت کے لیے تو اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب نے ان سے گزارش کی کہ آپ بائیکاٹ نہ کریں، اور وہ الیکشن ہوا، اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت جو ان کا مشن تھا اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا۔ 85% جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھی اس پہ عمل درآمد ہوا، 15% جو ہے ابھی تک نامکمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو پارٹی کا جو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو چاہیے وہ مل بیٹھ کر نمبر 1 چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کرتے ہوئے مکمل اس پر عمل درآمد کریں، جو 15% رہ گیا ہے اس کو بھی مکمل کریں، اور چارٹر آف اکانومی وہ اس سے بھی زیادہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ وہ مل کر چارٹر آف اکانومی پہ کام کریں اور اس ملک کو اس مشکل حالات میں سے نکالیں۔ آج محترمہ صاحبہ کی برتھ ڈے ہے، اور اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی جو پریزنس تھی آج اگر ہوتی تو اس وقت جو گھمبیر حالات ہیں ملک کے وہ ان کو یہاں سے نکالنے میں وہ کامیاب ہو سکتی تھی، تو مگر افسوس کہ وہ ہم میں نہیں ہے، مگر ان کا مشن اور ان کا ویژن، ان کی سوچ، ان کا فکر وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ جو لیڈر ہوتے ہیں اگر آپ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا بھی دیں وہ نہ بھی رہیں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، آج ان کا سوچ ٹرانسفر ہوئی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحب کو، پھر وہی سوچ ٹرانسفر ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو، اور وہی سوچ وہ آصفہ بھٹو کو اور ان کی ہمشیرہ ان کو ٹرانسفر ہوئی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مشن ہے یہ جاری رہے گا۔ بلے شاہ صاحب نے کہا تھا بولے ایسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، کیونکہ جو ویژن ہوتی ہے، آئیڈیالوجی ہوتی ہے، وہ کبھی دفن نہیں ہوتی اور وہ ختم نہیں ہوتی۔ لوگ چلے جاتے ہیں مگر ان کی جو سوچ ہے وہ رہ جاتی ہے، لہذا ان کی سوچ جو ہوگی وہ رہ جائے گی اور رہی ہے، اور اس کو مکمل کرنے میں بلاول بھٹو صاحب اور ان کے والد صاحب
सदर आसिफ अली जरदारी साहब, बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा और आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो हैं उनको मुकम्मल करेंगी। और जो पार्टी है माशाल्लाह फ़ाल है और उनका नौजवान है वो मुतहरक है, और हम चाहते हैं कि अगर आवाम में जाया जाए तो इंशाल्लाह जल्द आपको मंशूर मिलेगा, और वो ऐसा मंशूर होगा जिस पे अमल दरामद जब होगा इस मुल्क में खुशहाली आएगी, और इस मुल्क में जो स्टेबिलिटी है वो भी आएगी, इकोनॉमिकली भी पॉलिटिकली भी। और मैं एक मरतबा फिर ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक जो पार्टी की हदायत थी उसके मुताबिक पहले था एक जलसा आम होना चाहिए, उसका असर वो हर जगह ना हो सकता, मगर फिर उन्होंने फैसला किया कि आप हर ज़िला में एक तकरीब मनाएं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के लिए। तो आज वो तकरीब मनाई गई है और इसी तरीके से कल हाईकोर्ट बार में भी होगी और दूसरे भी होंगे तकरीबात। आज ये डिस्ट्रिक्ट में हो रही है मुल्तान में, कल सिटी की तरफ से होगी, तो उसमें हम शमूलियत करेंगे। कोई सवाल? आप समझते हैं कि जो आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमिक की बात की है, ये मुज़ाकरात जो हैं पार्लियामेंट की जमातों के दरमियान होने चाहिए या पार्लियामेंट से बाहर की जमातों में भी होने चाहिए? मेरा ख्याल है तमाम स्टेक होल्डर से होने चाहिए। क्या हम ये अखज़ कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो कुर्बानियाँ दी, जो शहादतें दी, क्या किसी सियासी जमात को गिरफ्तारियाँ तशद्दुद करके उसको ख़त्म किया जा सकता है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तवील तारीख है, उसका कंपैरिजन आप किसी और के साथ नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी उस वक्त से स्ट्रगल में है जब अयूब खान साहब थे, उस वक्त से स्ट्रगल कर रही हैं, और वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ अयूब खान हो, ज़ियाउल हक हो, जनरल मुशर्रफ हो, उन्होंने हर दौर में उन्होंने अज़ियतें बर्दाश्त की हैं। उन्होंने कोड़े भी खाए हैं, शही किलों में भी गए हैं और जराबतियाँ भी काटी हैं, मगर ना वो झुके हैं ना कोई बिके हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस आज के हालात का मुवाजना पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हो सकता। अदालतों के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्या सियासी कानूनों के मुकदमे फौजी अदालतों में जाने चाहिए? जो हुई है उनसे गलती हुई है, मान भी रहे, तस्लीम भी कर रहे। देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम उस खान वादा से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था, और पाकिस्तान के लिए हमने कुर्बानियाँ भी दी और कई जानें भी कुर्बान हुई। और पाकिस्तान के लिए जो मेरे वालिद थे या मेरे उन चचा थे, उनके चचा थे, उन्होंने जो करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी तो उनमें भी उनके दस्तखत थे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे लोग जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान में से थे, उनके लिए पाकिस्तान जो है वो उसका मकाम जो है बहुत बड़ा है, और पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के इमलाक पर और फौजी तनसीबात पे और फौजी अमलाक पे और शोहदा की यादगारों पे इस किस्म का अगर हमला होगा तो वो ये नहीं तसव्वुर किया जाएगा कि वो आम बात है। मैं उसको तसव्वुर करूँगा कि वो मुल्क पे हमला हुआ है। सर, ये फरमा दीजिएगा कि आपके दौर में जवाब वज़ीर आज़म थे, सूबे के हवाले से सिफारिशात मुरतब हुई और गवर्नमेंट सेनेट से भी पास हुई। एमका इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी जरूरी थी आप सूबे के लिए काम करेगी या फिर वही 2/3 अक्सरियत वाला मामला सामने लाकर इसे लटका दिया जाए? काश कि आप कल इजलास में होते, जो तमाम जमातें जो सराकी जमातें हैं, सराकिस्तान के लिए काम, इस खिते के लिए काम कर रही हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी सैल हासिल गुफ्तगू हुई। और मैं सिर्फ आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के एजेंडा पे है, और पीपल्स पार्टी ने 2/3 अक्सरियत के साथ सेनेट में
उन्होंने पास कर दिया था बिल। लोग लिखते हैं करारदाद, करारदाद नहीं, बिल पास हुआ था, एक्ट बन गया था। और अगर हमारे पास अक्सरियत कौमी असेंबली में भी होती और अगर उस वक्त की अपोजिशन हमारे साथ ताउन करती तो हम 2/3 अक्सरियत के साथ 5 मिनट में हम सूबा बना सकते थे। और इंशाल्लाह हमारी जुस्तजू जो है वो जारी रहेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एजेंडा में है। और छोटा सूबा जो सराइकी सूबा है और जो ये खिता है उनमें जो महरूमियाँ हैं, महकूमियाँ हैं और जो ये इनके साथ नाइंसाफियाँ हैं वो उनका अजाला किया जाए। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि नए सूबे बनने चाहिए। अगर सिंध में MQM या दीगर जमातें नए सूबे का मुतालबा करें तो क्या आप सिंध के अंदर भी इस तकसीम की हिमायत करेंगे? देखें, आप जान के इसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रहे हैं, ये इसकी तारीख है और उस पे आप मुझे बताएं। हमारे पास तो एक सेनेटर था, बल्कि सेनेटर थी खालदा मोहसिन कुरैशी साहबा, और आप देखें कि एक सेनेटर के साथ हम सूबा की बिल पास कर सकते थे। मगर इसका मतलब है तमाम जमातों ने उन्होंने मिलकर 2/3 अक्सरियत के साथ ये हमारा बिल पास किया और सूबे के लिए उन्होंने हमें शनाख्त के लिए वोट दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पार्टी और मुस्लिम लीग मुतहिद हैं अभी तक, इनके कल भी मुज़ाकरात हुए, CM सिंध गए थे। देखें, पॉलिटिक्स में गुफ्त शुनीद होती है। सियासत में आपस में इख्तलाफ राय को जमहूरियत कहते हैं और उसको आप ये लड़ाई नहीं कहते। तो व्हेन यू एग्री टू डिसएग्री इट्स डेमोक्रेसी। और हमारी कोई एक जमात नहीं है, इसमें कई जमातें हैं और मखलूत हुकूमत है और उस मखलूत हुकूमत में मुख्तलिफ आरा हैं और उस आरा में हमारे भी बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए वफूद वज़ीर आज़म से मिले भी और उसके बाद अब भी मिले हैं और बहुत सारे मसाइल जो उनका हल हो चुका है। तो इसलिए आप ये हमारा कोई इलेक्शन अलाइंस तो नहीं है, हमारा अपना मंशूर है, हमारा अपना प्रोग्राम है, हम उस प्रोग्राम के मुताबिक चल रहे हैं। मगर आइंदा जाकर क्या स्ट्रेटजी होगी वो लीडरशिप फैसला करेगी। आखिरी सवाल पार्टी के बारे में पार्टी और पंजाब में तहरीक इंसाफ की कोई इत्तेहाद की खबरें चल रही है, तो इस वजह से चाहते हैं कि ये बताइए बाद इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग लोग आप पर बात के इल्जाम लगा लिया, तो क्या फिर से सियासी लड़ाई शुरू होने वाली है पीपल्स पार्टी और लीग की? देखें, पहली तो बात यह है कि इस वक्त ये कहना कि हम इत्तेहाद बना रहे हैं, जो हुकूमतें होंगी या जो पार्टियां होंगी उस वक्त वो फैसला हमारी पार्टीज की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी, मैं नहीं कर सकता।